ویسٹ لندن کے علاقے ساؤتھ ہال میں پاکستان کے معروف تعلیمی ادارے نیسٹ کی الومنائے تنظیم کی جانب سے برطانیہ میں مقیم نیسٹ سے فارغ التحصیل طلباء کے لیے خوبصورت تقریب سجائی گئی، جس کا مقصد ادارے کے پرانے طلباء کے درمیان روابط کو فروغ دینا تھا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ادارے کے ریاکٹر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل جاوید محمود بخاری تھے۔ مزید تفصیلات جانیے بیورو چیف یو کے غلام حسین نوان کی رپورٹ میں۔ نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے سابقہ طالبہ کی ری یونین کی تقریب مغربی لندن کے علاقے ساؤتھ ہال میں منعقد ہوئی، جس میں برطانیہ کے مختلف اداروں میں کام کرنے والے نیسٹ کے فارغ التحصیل طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ادارے کے ریکٹر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل جاوید محمود بخاری تھے۔ اس موقع پر نیسٹ کے سابق طلبہ نے برطانیہ میں مختلف شعبہ جات میں کام کرتے ہوئے تقریب کے شرکاء کو اپنے تجربات سے آگاہ کیا۔ تقریب سے نیسٹ کے ریکٹر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل جاوید محمود بخاری، ڈاکٹر رضوان ریاض، نیسٹ کے ڈائریکٹر عبداللہ، ماریا سعدیہ اور دیگر نے خطاب کیا۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل جاوید محمود بخاری نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسے ادارے کا ریکٹر ہونے پر فخر ہے جس کا شمار اس دنیا کی 200 بڑی یونیورسٹیز میں ہوتا ہے، اور یونیورسٹی کے ماڈل کو چین نے بھی اپنے ملک میں استعمال کیا۔ دیگر مقررین نے کہا کہ یونیورسٹی کے تعلیمی اخراجات برداشت نہ کرنے والے قابل طلبہ کی مالی امداد کے لیے فنڈ قائم کیا جا رہا ہے، جس سے قابل اور ذہین طلبہ اس یونیورسٹی سے فارغ ہو کر نکلیں گے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نیسٹ کے ریکٹر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل جاوید محمود بخاری اور دیگر شرکاء نے نیسٹ کی تعلیمی کامیابیوں اور عالمی رینکنگ کے حوالے سے آگاہ کیا۔ NUST is one of the few universities in Pakistan which is committed to national growth, and we do this by following the triple helix model. It will be interesting for you to know that it is NUST which actually gave a fourth element in this helix model, which basically aims to put together government, industry and academia. NUST, as you know, پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹی ہے، اور ہم یہاں پہ آج انگلینڈ میں آئے ہوئے ہیں اپنی کمیونٹی اور اپنے المنائے سے ملنے، اور خاص طور پہ کرینفیلڈ اور اسٹیفرڈ شائر یونیورسٹیز کے ساتھ MOU سائن کرنے۔ کرینفیلڈ جیسے کہ آپ جانتے ہیں انگلینڈ کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے، بہت نامور یونیورسٹی ہے، سو انہوں نے خاص طور پہ NUST کو انوائٹ کیا ٹو جوائن ہینڈز ود دیم ان ریسرچ اینڈ پارٹنرشپ، جو کہ آئی تھنک ہمارے لیے بھی بڑے فخر کی بات ہے اور سب پاکستانیوں کے لیے۔ پاکستان کا بہت بڑا اثاثہ ہے یہ جو غیر ملکی پاکستانی ہوتے ہیں، اور یہ جو NUST کی ڈگری لے کے ہمارا، اور اس کا ایک بڑی انٹرسٹنگ فگر جو میں آپ سے شیئر کروں گی وہ ہے کہ تقریباً 42,000 نسٹینز ہیں، اور وہ 64 ڈفرینٹ کنٹریز میں ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے بڑی اچھی پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے نہ صرف زر مبادلہ بھیج رہے ہیں بلکہ بہت ساری ریسورسفل ڈورز اوپننگ بھی ہمارے لیے کرتے ہوتے ہیں۔ سو وی آر ہیئر ٹوڈے ٹو فائنڈ آور اون نسٹینز، کہ NUST کے گریجویٹس فرام آل 19 کانسٹیٹوئنٹس آف NUST جو کہ UK میں ڈفرینٹ سٹیز سے آج آئے ہیں، اینڈ وی آر جسٹ کولیبریٹنگ، گیٹنگ ٹوگیدر، بلڈنگ آور نیٹ ورک۔ وی لیو ان این ایرا ویئر آور نیٹ ورک از دا نیٹ ورتھ۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ یہاں پہ جو کمیونٹی ہے NUST وہ اسٹرانگ ہو۔ دنیا میں 64 ابھی تک کیا کہتے ہیں کنٹریز میں ہمارا چیپٹر ہے، اور UK کا یہ پہلی کنونشن ہے جو ہم لوگ کرا رہے ہیں، اور وی ہیو اے لاٹ آف پیپل کمنگ ان، اراؤنڈ 60 لوگ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ جتنے بھی یہاں کے جو UK بیسڈ نسٹینز ہیں ان ساروں کا گیٹ ٹوگیدر ہے۔ پاکستان سے ریکٹر آئے ہوئے ہیں، اور جو وہاں کی جو ٹیم ہے وہ لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں ملنے کے لیے کمیونٹی سے، اور لوگوں میں اویئرنیس جنریٹ کرنے کے لیے بیسکلی کہ NUST کی کیا کتنے زیادہ پروگرامس ہیں، اور کیونکہ یہ لوگ سپورٹ بھی کرتے ہیں، ایک سوشل کاز بھی ہے ان کا NUST کا، تو اس کے لیے جسٹ اویئرنیس جنریٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ I think it's a very good opportunity for us to meet after so many years. It's been a while since we graduated, تو بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آ کے، سب فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ تقریب میں شرکاء کو تحائف بھی پیش کیے گئے۔ بیورو چیف غلام حسین نوان، 92 نیوز UK۔ پاکستانی سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے فنڈ ریزنگ تقریبات کا انعقاد جاری ہے۔ متاثرہ علاقوں میں تعلیمی اداروں کی تعمیر نو کے لیے لندن میں غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے زیر اہتمام تقریب ہوئی، جس میں معروف شاعر، ڈرامہ و کالم نگار امجد اسلام امجد اور معروف مزاحیہ شاعر و کالم نگار خالد مسعود خان نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے ٹرسٹ کے سکولز کی تعمیر نو کے لیے دل کھول کر عطیات دیے۔ سلیم صابری کی یہ رپورٹ تھی۔ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے زیر اہتمام لندن کے مقامی ریسٹورنٹ میں پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ تعلیمی اداروں کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ شرکاء نے غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کی امدادی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ایک کثیر رقم سیلاب سے متاثرہ تعلیمی اداروں کی بحالی کے لیے عطیات دیے۔ لندن کی سیاسی
समाजी, मजहबी और कारोबारी शख्सियात ने इस तकरीब में भरपूर हिस्सा लिया। पाकिस्तान से खसूसी तौर पर शोराए कराम अमजद इस्लाम अमजद, खालिद मसूद खान और गजाली एजुकेशन ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैयद आमिर महमूद जाफरी ने खसूसी शिरकत की। तकरीब का आगाज अल्लाह के बाबरकत कलाम से हुआ, जिसके बाद कारी उस्मान जुन्नूरैन ने नाते रसूल मकबूल पेश की। गजाली एजुकेशन ट्रस्ट के स्पेशल बच्चों का तैयार करदा पाकिस्तान का कौमी तराना स्क्रीन पर पेश किया गया। तकरीब में गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वजीर आला अजीजुर रहमान और सफीर हारून रशीद के अलावा ब्रंट के मेयर अरशद महमूद, दुर्दाना अंसारी, डॉक्टर नीलम फवाद, गजाली एजुकेशन ट्रस्ट बरतानिया के CEO नसर इकबाल और गजाली एजुकेशन ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहतरम सैयद आमिर महमूद जाफरी साहब ने खिताब किया। इस मौके पर मुकर्ररीन ने अपने खिताब में कहा, गजाली एजुकेशन ट्रस्ट गुज़श्ता सालों से पाकिस्तान में तालीम के फरोग के लिए काम कर रहा है। 650 स्कूलों में से 40 स्कूल सैलाब से मुतासर हुए हैं, जिनकी तामीर नौ जरूरी है। आखिर में एक महफिल मुशारा का एहतमाम किया गया, जिसमें सुहेल ज़रार खलिश, प्रोफेसर अकील दानिश, एहसान शाहिद और मुअज़्ज़ज़ शुअरा कराम अमजद इस्लाम अमजद साहब, खालिद मसूद खान साहब ने अपना शानदार कलाम पेश किया। खूबसूरत कलाम ने शुरका के दिल मोह लिए। हाज़रीन महफिल ने दिल खोल कर दाद दी। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा, मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है कि ये जितनी पुरानी, जितनी भी मजबूत हो जाए, इसे तालीद ताज़ा की जरूरत फिर भी लगती है। तकरीब के बाद मसूद अहमद खान, अमजद इस्लाम अमजद, गजाली एजुकेशन ट्रस्ट UK के CEO नसर इकबाल और दीगर शख्सियात ने 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कुछ यूँ इजहार ख्याल किया। 37 के करीब स्कूल है जो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गए हैं, तो हम इसलिए आए हैं ताकि फंड रेजिंग की जा सके और वो जो सैलाब में जो स्कूल पार्शली या फुली डैमेज हुए हैं उनको दोबारा बहाल किया जा सके, उनकी तामीर नौ की जा सके। इस टाइम पे बहुत मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए और मेरे ख्याल से हम लोगों को ऑल ओवरसीज को यूनाइटेड होके इस मुश्किल घड़ी में इकट्ठे होके हेल्प करना चाहिए। पाकिस्तान में तालीमी हवालों से गजाली एजुकेशन ट्रस्ट सबसे बड़ा नाम है, खासकर देही इलाकों में। हमारे लगभग पूरे पाकिस्तान में 700 से ज़्यादा स्कूल है, 1 लाख से ज़्यादा बच्चे उसमें पढ़ते हैं, लेकिन सैलाब की वजह से वो स्कूल तबाह बर्बाद हो गए। तो आज इसीलिए हमने यहाँ फंड रेजिंग की है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस भी है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इसी तरह रिस्पांस जारी रहेगा। हम लोग अपने लोगों के दुख में बराबर के शरीक हैं। जैसे जैसे वो लोगों को हमें पता चल रहा है कि उनके पास कपड़े नहीं है, उनके पास घर नहीं है रहने को, और ये लोग गजाली वाले या जो भी कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। सैलाब ने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। गजाली एजुकेशन ट्रस्ट के 650 से ज़्यादा स्कूल हैं, उनमें से भी तकरीबन 40 स्कूल जो है वो डैमेज हुए हैं। तो आज बेसिकली हम उन स्कूलों की बहाली के लिए, उनकी तामीर के लिए फंड रेजिंग करने आए हैं। फंड रेजिंग तकरीब में लंदन लेडीज क्लब की रूह रवा रुखसाना रक्षी, सुहेल जरार, काउंसलर असमा मोइन, डॉक्टर नीलम फवाद और दुर्दाना अंसारी OBE ने शिरकत की। सलीम साबरी, 92 न्यूज, लंदन। लेफ्टिनेंट में मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के नवंतखब मरकजी जनरल सेक्रेटरी और साबिक सीनियर वजीर आज़ाद कश्मीर चौधरी तारिक फारूक के एजाज़ में ज़ोहराने का एहतमाम हुआ, जिसमें लेफ्टिनेंट की कम्युनिटी और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर चौधरी तारिक फारूक का कहना था कि मुल्क इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है, तमाम सियासी पार्टीज को मुल्क की खुशहाली और सलामती के लिए मिलकर काम करना होगा। तफसीलात लेफ्टिनेंट से चौधरी निसार की रिपोर्ट में। साबिक सीनियर वजीर आजाद जम्मू व कश्मीर और मुस्लिम लीग नून के नौ मुंतखब मरकजी जनरल सेक्रेटरी चौधरी तारिक फारूक के एजाज में ज़ोहराने का एहतमाम मुस्लिम लीग आजाद कश्मीर के कारकुनान चौधरी जहांगीर मलिक अनवर और दीगर की जानिब से किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर बरतानिया के कारकुनान के साथ साथ कश्मीरी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर लीगी कारकुनान ने चौधरी तारिक फारूक को ल्यूटन आने पर खुशामदीद कहा और पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होने पर मुबारकबाद
बात दी। तकरीब से खिताब करते हुए लीगी कारकुनों ने साथ साथ ये भी कहा कि गुज़िश्ता दौर में पार्टी के कारकुनान को नजरअंदाज करने की वजह से जो बहुत सारे कारकुन नाराज हैं, उन्हें साथ लेकर चला जाए और पार्टी को मुत्तहिद और मजबूत किया जाए। कारकुनों ने तजावीज भी पेश की। इस मौके पर चौधरी तारिक फारूक ने अपने ख्यालात का इजहार किया। उनका कहना था कि वजीर आजम पाकिस्तान ने जो बात कश्मीर के मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा में कही, दुनिया को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। कश्मीर की अपनी एक शनाख्त और पहचान है जो हर सूरत बरकरार रहेगी। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने यूएन की जनरल असेंबली में जिस तरीके से बात की है, दुनिया को उनकी बात का नोटिस लेना चाहिए और यूएन को भी जो है वो ऐसे इकदाम करने चाहिए जिसकी वजह से उसकी अपनी साख भी जो है वो बरकरार रहे और वो सही मानों में अक़वाम आलम का किरदार अदा कर सकें। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसहाक डार तजर्बेकार शख्स हैं। बतौर वजीर खजाना वो मुल्क को इस भंवर से निकालेंगे। वजीर आजम आजाद कश्मीर एक इंतहाई गैर संजीदा शख्स हैं। उनको अवाम के मसाइल का कोई इदराक नहीं है। इसहाक डार साहब जो है ना वो एक करिस्मेटिक आदमी है और राइट मैन फॉर द राइट जॉब। उनको जिस तरीके से बाहर रखा गया उस पर अब मैं नहीं जाना चाहता। अदालतों ने अब फैसला किया है तो डार साहब के जाने से जो है वो मुझे यकीन है कि हालात बेहतर होंगे। और उसके अलावा भी जो इंटरनेशनल दुनिया है वो भी अब IMF के माहदे के बाद जो है वो पाकिस्तान की तरफ जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर उसकी सोच और फिक्र है। और जो PR है इसहाक डार साहब की, जो उनकी क्रेडिबिलिटी है, मुझे उम्मीद है कि उसकी वजह से वो पाकिस्तान को मुश्किल गिरदाब से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी तारिक फारूक और दीगर शख्सियात ने कम्युनिटी इवेंट के हवाले से इजहार ख्याल किया। चौधरी तारिक फारूक ने ऑडियो लीक्स के हवाले से तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो उनकी अब जिम्मेदारी है कि वो इसके असबाब जो है वो पता करें और इतना सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होना चाहिए था। और ये जो बात है इत्तेहादी हुकूमत के लिए भी ज़रूरी है कि वो अगर उनके अंदर कोई इस तरह का मामला है तो उसको भी देखे। प्राइम मिनिस्टर हाउस का एहतराम और प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू का एहतराम, कैबिनेट की गुफ्तगू का एहतराम और इसी तरह जो हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं उनकी जो बात है वो भाई इस तरह बाहर आनी जिस तरीके से लाई गई है, ये बहुत ही तशवीशनाक है और हुकूमत को इसके ऊपर सख्त कदम उठाना चाहिए। शाहिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज़ाद कश्मीर की क़यादत कारकुनों के हवाले की। मैं अपने पूरे ताउन का यकीन दिलाता हूँ। जितने भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान में ये और जहाँ जहाँ दुनिया में भी, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा अपने इख्तिलाफ जितने भी है उनको एक साइड पर रखें और कश्मीर काज के लिए एक प्लेटफॉर्म पर एक आवाज़ बने। साहब ने आज़ाद कश्मीर के मौजूदा हालात और पाकिस्तान के सियासी हालात पर खुलकर बात की और फिर सिर्फ मार्च अगस्त के बाद जो कश्मीरियों को जो दरपेश चैलेंजेस है उनका खुसूसी तौर पर अहाता किया। कश्मीर के मामले में जो है इशू है उस पर मुस्लिम लीग की जो कश्मीर हमेशा पहली तरजीहात में रहा है। मैं यकीन से कहता हूँ कि जो अभी मौलाना साहब का बयान है तंजीमी सरकार इसमें भी मसला कश्मीर हमारी अवल पूछती है और इंशाल्लाह जब ये मसला कश्मीर हल होगा। लीगी कारकुनों और ओहदेदारों का कहना था कि आजाद कश्मीर में PTI हुकूमत का कोई सियासी विजन या सियासी किरदार नहीं है, इसलिए बहुत जल्द हम पीपल्स पार्टी की मदद से आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली में तहरीक आदम एतमाद लाने पर गौर कर रहे हैं। चौधरी निसार गुलशन, 92 न्यूज़, ल्यूटन। लंदन में 2 रोज़ा पाकिस्तान प्रॉपर्टी एक्सपो इख्तिताम पजीर हो गई। दूसरे रोज़ भी लोगों और इन्वेस्टर्स का स्टॉल्स पर रश रहा। पाकिस्तान की तमाम बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ ने लोगों को अपने प्रोजेक्ट के मुतालिक ब्रीफिंग दी। 2 रोज़ा नुमाइश रियल स्टेट से वाबस्ता कारोबारी हजरात की तवज्जो का मरकज़ रही। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन अमान की इस रिपोर्ट। मशरकी लंदन के एक्सेल अरीना में 2 रोज़ा पाकिस्तान प्रॉपर्टी एक्सपो एक्स इख्तिताम पजीर हो गई। दूसरे रोज़ भी स्टॉल्स पर सरमायाकारों और खरीदारों का रश रहा। पाकिस्तान की तमाम बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ ने इस एक्सपो में अपने स्टॉल्स लगाए। स्टार मार्केटिंग और अलायंस मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग के ताउन से होने वाली इस एक्सपो में दर्जनों की तादाद में रियल स्टेट से वाबस्ता कंपनीज ने शिरकत की। ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि पाकिस्तान में सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए रियल स्टेट ही वाहिद जरिया है जिसमें महफूज सरमायाकारी के साथ मुनाफे की शरह भी ज़्यादा है और मुल्की ज़र मुबादला
کے ذخائر میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہر سوسائٹی میں اوورسیز بلاک رکھا گیا ہے تاکہ اوورسیز پاکستان میں بھی بین الاقوامی سطح کی سہولیات کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ I'm Michaela from G-Stones International Properties and we are participating in the expo today. If you would like any more information, our number is on the screen. میں اسٹار مارکیٹنگ کو اس ایکسپو کے انعقاد کے لیے مبارکباد دیتا ہوں اور تمام تر پاکستانی جو بھی یہاں پہ آپ لوگ تشریف لائے ہوئے ہیں سب کو میں انوائٹ کروں گا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں۔ یہ آپ پاکستانیوں کے لیے بھی بہتر ہے اور پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے۔ اس وقت پاکستان تھوڑے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ کنٹری وڈ کم آؤٹ آف دیٹ سچویشن۔ پرٹیکولرلی یہ فلڈ ہے، ڈالر کا ریٹ ہے، دوسری کچھ چیزیں ہیں۔ اس وقت پاکستان میں قیمتیں بھی کم ہیں تو میرا خیال سے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں۔ میں سیپ اسٹیٹ اور سیپ گروپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ڈائریکٹر ہوں۔ تو یہاں پہ ہم نے جو ایکسپو میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، گاہک بہت زیادہ آ رہے ہیں، کسٹمر بہت زیادہ آ رہے ہیں، ہم نے کافی بکنگ بھی کرا لی ہے یہاں پہ، تو یہ ایک کامیاب ایکسپو ہے۔ الحمدللہ سو فار بڑا اچھا جا رہا ہے ایونٹ۔ کل کا دن بھی بڑا اچھا رہا، بڑا اچھا فٹ فال ٹرن آؤٹ رہا، لوگ آئے، انہوں نے بڑی کیوریز کی ہیں، اپرچونیٹیز بھی اویل کی ہیں، کچھ پرچیزنگ بھی ہوئی ہے۔ آج بھی سو فار بڑا اچھا دن جا رہا ہے اور میں انوائٹ کروں گا جو پاکستانی کمیونٹی اب تک نہیں انہوں نے وزٹ کیا ہے، آئیے اور جو یہاں پہ ایونٹ اپرچونیٹیز ہیں ان کو اویل کریں۔ اب دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں پہلا سے پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ سب کی دعاؤں سے اس کو جلدی ہماری ایم ہے کہ اس پروجیکٹ کو ختم کریں اور ڈیلیور کر کے لوگوں کو کچھ نیا اسٹینڈرڈ دیں لیونگ کا۔ کیونکہ ہم لوگوں نے یہاں پہ دیکھا جو بھی لوگ آتے ہیں یہاں سے، دبئی سے، امریکہ سے، وہ لوگ چاہتے ہیں ان کے بچوں کی سیفٹی، سیکورٹی اور ایک اسٹینڈرڈ چاہتے ہیں، تو ہمارا بھی یہ پورا گول ہے کہ ان کو وہ سب چیزیں دے دیں۔ We're here at the Pakistan Property Show in London XL, 2-day event, second day today. Yesterday we had some good leads. We're here promoting our project in Islamabad, a 5-star luxury apartments, 5-star hotel, and also a high-end premium mall. It's designed for overseas Pakistanis. We're hoping that we're going to meet some more people today and really give them an opportunity to be able to connect back to their roots, have a place of their own, and have a really good lifestyle opportunity. اوورسیز کلائنٹس کے لیے جو فرسٹ ورلڈ کنٹری میں جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں اور وہی ہم فیسلٹیز ان کو پاکستان کے اندر دے رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ سارے اوورسیز پاکستانیز جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، جو رہائش کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس بہت اچھی آپشنز ہیں، کمرشل میں بھی، ریزیڈینشیل میں بھی۔ سو پلیز آپ اس کا پارٹ بنیے اور یہ آپ کے فیوچر کے لیے بہت اچھی چیز ہے، سیکیور ہے، اور جو فیسلٹیز ہم وہاں پہ دے رہے ہیں، جس پرائس پہ ہم دے رہے ہیں، دیٹ از کوائٹ امیزنگ۔ ہم نے جی سٹونز میں اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ ہم لوگ یہاں پہ جو ہے وہ پارک ویو سٹی اسلام آباد اور کیپٹل اسمارٹ سٹی اینڈ لاہور اسمارٹ سٹی اس کے آتھورائز پارٹنرز ہیں۔ پبلک کا رسپانس بہت اچھا تھا الحمدللہ، اسپیشلی جو ہے زیادہ انٹرسٹ جو ہے ہمیں یہاں پہ لوگوں نے جو ہے وہ ریڈی میڈ ہاؤسز میں شو کیا، کیونکہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ دے وانٹ ٹو انویسٹ ان پاکستان، لیکن ان کو کنسٹرکشن میں ایشوز آتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اوورسیز پاکستانیز کے لیے یہ ہے کہ جو ریڈی میڈ ہاؤس ہے اس کے لیے بھی جو ہے ہم اس کے لیے ڈیلز لائے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسی ایکسپوز ہونی چاہیے تاکہ اوورسیز پاکستانی جو ان کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے، تو یہ ایک اچھا شو ہے، اٹس اے گڈ ایفرٹ۔ ابھی تک ہمارا رسپانس بہت اچھا ہے اور جیسے آپ کو پتا ہے پاکستان سے کوئی 40 کے آس پاس بلڈرز یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور جو کراچی لندن میں رہنے والے پاکستانیز اور یو کے میں رہنے والے پاکستانیز بھی یہاں اچھے نمبروں میں آ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے کانٹیکٹ ہو رہا ہے۔ پاکستانیز اپنی جو کنسرنز ہوتے ہیں پراپرٹی کے حوالے سے وہ لوگ بلڈرز کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ریل اسٹیٹ کا کاروبار بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اس میں انویسٹرز کا سرمایہ بھی محفوظ ہے۔ غلام حسین وان، بیورو چیف 92 نیوز، UK۔ برمنگھم میں تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل کے زیر اہتمام مدینہ الزہرا پروجیکٹ کے لیے فنڈ ریزنگ تقریب ہوئی، جس میں برطانیہ بھر سے منہاج القرآن کے ممبران، عہدیداران، خواتین و حضرات اور کمیونٹی رہنماؤں نے شرکت کی۔ برطانوی ارکان پارلیمنٹ بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر شرکاء نے دل کھول کے احتیاط دیے۔ مدینہ الزہرا پروجیکٹ کو مستقبل کے معماروں کے لیے شاندار تحفہ قرار دیا گیا۔ برمنگھم سے عابد قاسمی کی یہ رپورٹ۔ تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل کے زیر اہتمام برمنگھم کے مقامی ہال میں فنڈ ریزنگ ایونٹ منعقد کیا گیا، جس میں برطانیہ بھر سے منہاج القرآن کے ممبران، عہدیداران، خواتین و حضرات اور دیگر کمیونٹی رہنماؤں اور MP نے شرکت کی۔
इस मौके पर डायरेक्टर जनरल अलामा अफजल सईदी ने खिताब करते हुए कहा कि ब्रेडफोर्ड में कई एकड़ पर मुहित ऐसा इंस्टीट्यूट तामीर किया जा रहा है जहां नौजवानों में दीनी शाऊर और मुस्तकबिल के ममारों की आला तालीम और तरबियत का शानदार इंतजाम किया जाएगा ताकि वो बरतानिया जैसे कसीर सकाफती माशरे में दीगर कम्युनिटीज के साथ मिलकर बेहतरीन जिंदगी गुजार सकें। तकरीब में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ताहिर अली, साबिक लॉर्ड मेयर ख्वाजा महमूद समेत बरतानिया भर से सियासी और समाजी कारोबारी शख्सियात, खवातीन व हजरात ने शिरकत की और इजहार ख्याल किया। ब्रेडफोर्ड में बनने वाले प्रोजेक्ट के हवाले से बाकायदा तौर पर प्रोजेक्टर के जरिए ब्रीफिंग देते हुए मुंतजमीन ने कहा कि शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी के फलसफा विजन के मुताबिक मदीना और ज़हरा में तलबा और तालिबात की तालीम के साथ बेहतरीन तरबियत शामिल होगी। इस मौके पर तहरीकी नौजवान ने मदीना और ज़हरा की 3D स्ट्रक्चर और प्लानिंग की शानदार तस्वीर कशी की, जिसे शुरका ने बेहद सराहा और इंतजामिया की अपील पर दिल खोल कर अतियात दिए। शुरका ने $500 मिलियन की खती रकम के अतियात दिए। डायरेक्टर अलामा अफजल सईदी और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज की तकरीब में भारी तादाद में फंड्स मिलना प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी के नजरिए पर अवामी एतमाद का इजहार है और ये प्रोजेक्ट ब्रिटिश मुस्लिम बच्चों बच्चियों के लिए एक तोहफा होगा। हम एक प्रॉपर इस्लामिक इंस्टीट्यूशन बनाने जा रहे हैं ताकि आइंदा जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनके लिए हम कुछ कर सकें। ये एक बाकायदा मदरसा नहीं है, इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है। हम इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स टैकल करेंगे जो नौजवानों के लिए बिलखुसूस होंगे। आपने देखा होगा कि ड्रग अब्यूज़ होता है, अल्कोहल अब्यूज़ होता है, सेक्सुअल ग्रूमिंग होती है। इस तरह के मॉडर्न जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हम उनको टैकल करेंगे इंशाल्लाह, ताकि वो सिरात मुस्तकीम पर हमारी जो जवान नस्लें हैं वो चल सके। His vision that we provide a hub or a center where people can learn from, people can benefit from. The younger generations, the upcoming generations here in the UK can come here, take benefit from for their worldly needs, for their worldly education, for their Islamic education. They'll also be provided with schooling facilities, boarding facilities, and there'll be also sports facilities. मदीना तो ज़हरा जो कि नॉट ओनली यूके बल्कि यूरोप का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और ये तकरीबन इसकी कास्ट ओवर 20 मिलियंस है। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली ये उनके ख्वाबों की ताबीर है और बहुत सारा इसका काम, वर्क, प्लानिंग, तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। अब कंस्ट्रक्शन का वर्क शुरू होने वाला है। बहुत मॉडर्न लेवल का है, हाई क्वालिटी, इट्स एक्सीलेंटली पुट टुगेदर और आई एम श्योर कि ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के जो यंग ब्रिटिश मुस्लिम्स हैं उनको ज़रूर ये अट्रैक्ट करेगा, बहुत कामयाब होगा। मिनहाजुल कुरान का एक अजीम शान प्रोजेक्ट है जिसके अंदर न सिर्फ मस्जिद होगी बल्कि एक बोर्डिंग स्कूल होगा, कम्युनिटी सेंटर होगा, स्पोर्ट्स हॉल होगा, एक इवेंट सेंटर होगा। सो एक मल्टीपर्पज अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये बहुत ज़रूरी है फ्यूचर जनरेशन के लिए, इसलिए हमें ना इस तरह की कम्युनिटी सेंटर चाहिए जिसके अंदर सारे लोग आएँ, तरबियत इम्प्रूव हो, नॉलेज स्प्रेड हो। तो ये काफ़ी इस्लाम का मैसेज सारों को जाएगा, तो बच्चों को भी एक न्यू जगह मिलेगी सीखने के लिए। मकसद यही है कि ब्रेडफोर्ड में बनने वाले इस अजीम शान प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया जाए और इसका जो अभी पहला मरहला स्टील वर्क का जो है वो शुरू हो रहा है, जिसने के लिए 2.5 से 3 मिलियन पाउंड की रकम दरकार है, वो जो है वो रेस की जाए, कलेक्ट की जाए। शुरका का कहना है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी हमारी नस्लों को बेहतरीन इंसान बनाने की गर्ज से मुस्तकबिल के लिए हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। यही वजह है कि आज तमाम शुरका ने इनके विजन पर लब्बैक कहा। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। स्कॉटलैंड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंफ्रा पार्टी इलेक्शन के बाद शदीद इख्तलाफात का शिकार। पार्टी यूके इंतखाबात के बाद 2 धड़ों में तकसीम हो गई। दोनों धड़ों में इख्तिदार के लिए रस्साकशी शुरू है। अपने अपने सुदूर का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट करेंगे ग्लासगो से नुमाइंदा शाहिद मीर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्कॉटलैंड को धचका। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ने पार्टी को मुतहद करने के बजाय तकसीम कर दिया। तहरीक इंसाफ स्कॉटलैंड वेस्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद द इंसाफियन ग्रुप और इंसाफ वर्कर फ्रंट के दरमियान इक़्तिदार की जंग छिड़ चुकी है। दोनों ग्रुप्स ने स्कॉटलैंड में अपने अपने सदर का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ स्कॉटलैंड वेस्ट के इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2022 में 2 ग्रुप्स द इंसाफियन ग्रुप और इंसाफ वर्कर्स फ्रंट के दरमियान इलेक्शन से पहले सुलहनामा तय पाया था, जिसके
तहत दोनों ग्रुप्स ने मुतफिका तौर पर सीट एडजस्टमेंट कर ली थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद दोनों ग्रुप्स में इख्तलाफात के बायस मुआहदा कायम न रह सका और दोनों के दरमियान कुर्सी और ओहदों की जंग शुरू हो गई। 2 रोज पहले इंसाफ वर्कर्स फ्रंट ने अपने सदर अली हैदर और दीगर पैनल का ऐलान कर दिया, जिसका नोटिफिकेशन भी OIC की तरफ से रात के तकरीबन 11 बजे जारी हो गया। जबकि गुज़श्ता रोज दूसरे ग्रुप द इंसाफियन ग्रुप ने इंसाफ वर्कर्स फ्रंट की बड़ी विकेट गिरा दी और राजा लियाकत इंसाफ वर्कर ग्रुप छोड़कर द इंसाफियन ग्रुप में शामिल हो गए और पैनल की अक्सरियती राय से राजा लियाकत इकबाल को PTI वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड का सदर मुकर्रर कर दिया गया। PTI वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में 2 पैनल के 2 सदूर मुकर्रर हो चुके हैं। इन दोनों ग्रुप्स के इख्तलाफात से पार्टी को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। PTI के इलेक्शन कमीशन के अहदेदार अब्दुल्ला रियाड़, अनवारुल हक और पार्टी की मरकजी क़यादत ने अगर फौरी तौर पर इस मामले पर एक्शन न लिया तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के इख्तलाफात बढ़ने से पार्टी की साख और कम्युनिटी के इमेज को भी नुकसान पहुंच सकता है। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो। अमरीका में उर्दू के फ़रोग़ के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें ख़वातीन दानिशवरों समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी की सरकर्दा ख़वातीन ने शिरकत। तकरीब का अहवाल जानेंगे वाशिंगटन से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट में। उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबां की है। अमेरिका की तमाम रियासतों में बर्रे-सगीर पाको हिंद के लाखों नहीं करोड़ों लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि उर्दू जुबान बोलते या समझते हैं। उर्दू जुबान से आबाई ताल्लुक रखने वाले घरानों के बच्चों को उर्दू सिखाने की कोशिशें की जाती हैं ताकि वो अपनी सकाफत से मुंसलिक रहें। इसी सिलसिले में इंडस आर्ट्स ने मारूफ सहाफ़ी और कलम निगार नुज़ैरा आज़म के एजाज में रियासत वर्जीनिया में एक तकरीब का एहतमाम किया, जिसका अव्वलीन मकसद अमेरिका में उर्दू जुबान का फरोग था। तकरीब में नुज़ैरा आज़म की तसानीफ भी रखी गई थी। तकरीब में ओवरसीज पाकिस्तान कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की और तकरीब के अदबी रंगों का लुत्फ उठाया। नुज़ैरा आज़म ने इस मौका पर अपना फन पारा पेश किया। शहर की एक बड़ी कच्ची आबादी तुर्क कॉलोनी में 2 कमरों और एक कोठरी और महदूद से आंगन वाले घर में ये छोटा सा खानदान रहता था। इस मुख्तसर से कमरे में एक तरफ बान की चारपाई थी जिस पर रहमत बीबी अपनी एक पोती के साथ सोती थी। दीगर शुरका ने नुज़ैरा आज़म के फन और तर्ज तहरीर पर इजहार ख्याल करते हुए उन्हें अमेरिका में खुशामदीद कहा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरका का कहना था, अपनी रिवायात और जड़ों तक पहुँचने के लिए जुबान बेहतरीन रास्ता है। ओवरसीज पाकिस्तानी अपने बच्चों को नई नस्ल की रिवायात और वतन से जोड़े रखने के लिए उर्दू जुबान का इंतखाब करें। यहाँ पे पलने बढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो कुछ बट के रह गए हैं, ज़हनी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे, और रिवायात कुछ और लेके आते हैं उनके वालिदैन और यहाँ पे वो मुख्तलिफ मुआशरे में परवरिश पा रहे हैं। तो उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि उर्दू के इस टूल के ज़रिए, इस एक तरीके के ज़रिए वो उर्दू ज़बान सीखें और उसके हवाले से अपनी जड़ों तक पहुँचें। इंडस आर्ट काउंसिल जो DMV एरिया में उन्होंने 2 साल पहले अपना इंतखाब किया है, उर्दू के लिए लैंग्वेज क्लासेस की हैं और हम लोग बहुत से इवेंट्स करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जो उर्दू कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है, हिंदुस्तान से भी जो उर्दू बोलने का शौक़ रखते हैं वो हमें ज्वाइन करें और प्लीज़ हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ें। अमेरिका में एक बहुत बड़ी खूबी है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट करने चाहें तो हुकूमती लेवल पर, स्टेट लेवल पर आपको मदद मिलती है और इसमें कई लोग ऐसे हैं जो ये काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब बच्चे एक प्लेटफॉर्म पे जमा होते हैं, बहुत से बच्चे एक जगह होते हैं और एक तरह के कपड़े पहनते हैं। आपको शायद ये बात पता हो कि वर्जीनिया में इंटरनेशनल डेज मनाई जाते हैं, खाने होते हैं, ज़बानें होती हैं, कपड़े होते हैं। ये बच्चों के लिए एक कलर देते हैं। नुज़ैरा आज़म का कहना था, अमेरिका की एक खासियत ये भी है कि यहाँ लोगों को अपने खानों, ज़ुबान, लिबास और आबाई रिवायात और सकाफती सरगर्मियों को मनाने की मुकम्मल आज़ादी है, बल्कि हुकूमती सतह पर उसकी हौसला अफजाई की जाती है। यही वजह है कि आबाई वतन से हज़ारों किलोमीटर दूर रहकर भी माँ बाप अपने बच्चों को अपनी सकाफत से जोड़े रखते हैं और उनकी परवरिश उस अंदाज से की जाती है कि वो रिवायात को जिंदा रखें। उर्दू के फ़रोग के लिए अमेरिका में की जाने वाली कोशिशें लायक तहसीन है। ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तानी हुकूमत भी ऐसे इदारों को सपोर्ट करे जो कि दियारे गैर में पाकिस्तान की कौमी जुबान के फरोग का बायस बन रहे हैं। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन DC। पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी ने
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आज़म ने सैलाब ज़दगान की इमदाद पर खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी से दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की और दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन का जायज़ा लिया और मुस्तक़बिल में भी ताउन को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की जानिब से सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए की जाने वाली काविशों को सराहा और इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने पर उनकी तारीफ़ की और खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए फ़ज़ाई ब्रिज बनाने पर नेक ख्वाहिशात और शुक्रिया अदा किया।